Hello, my dear students. Welcome to Maths Academy by DZ. This is the platform which is going to teach for the students those who are going to appearing for 11th and 12th standard. Yes, and as well as suppose they are going to appearing for the JEE Mains and Karnataka CET. Okay, so now we can start in this class. So that is the chapter name is relations and function. What is that? Relations and functions. Yes, and in this chapter we are taking the first exercise. Yes, we are taking which one? First exercise. So from that we can continue the important questions. Okay, whatever the important questions are there, okay, we can cover all the important questions from the exercise 1.1. So we have completed the some lectures about that. Yes, so before that, please like, share, subscribe to our channel. Suppose if you are not subscribed, so please subscribe to our channel and share to your friends. Okay, so and this is the lecture number what? 6. Okay, so we have completed totally 5 lectures. Suppose if you don't know, so in case if you did not watch those classes, please complete those classes. Okay, so because of whatever the classes we are going to complete here, all the important questions we are taking each and every day. Okay, so that's why what are the questions we have completed, those all the questions they are what 3 marks questions only. So that's why please complete those all the questions. Okay, now we can start the one of the question here. Before that, I will say in this class important questions. Okay, so whatever the important questions, see this is 3 marks important questions we are taking here. Yes, 3 marks, I will underline those. Okay, see these are the 3 marks important questions from relations. Okay, so actually the chapter name is relations and function, but we are taking the important questions from the relations only. Okay, means exercise 1.1. Okay, so I am writing here, see example 4.4 comma 5. Yes, there are 2 examples out of total 6 examples. So how many examples are very important for 3 marks? Means 4 comma 5, 2 examples which are very important, remember that. Okay, and next is, so after that, see here, next one is exercise from the exercise 1.1. Okay, exercise 1.1. So important questions sir, what are the important questions sir present? Means see here, question number 1. So total 1 to 4 bits, they are very important question. Just I will remove this one from the question number 1. So there are total how many questions? Means question number 1, how many bits are important? There are total 1 2 3 4 bits are very important. So I have completed first and fourth. So please complete the second and third one. And after that, see the question, remaining questions, fourth one and fifth one, they are very important questions. Okay, and 8 9 12. Okay, so these all the questions, please first complete all these questions. Okay, make the practice. So majorly I'm going to complete all these questions here. Okay, so these questions, and you have to take the remaining questions from the exercise also. One by one you people should be complete. Okay, then only you will be get the clarity about this. Okay, so इसके ऊपर आप लोगों को clarity आ सकता है. तो नेक्स्ट अभी देखेंगे सर, अभी इसके अंदर मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया, तो आप लोग देखो 4 और 5 एग्जांपल भी शायद हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोलते क्वेश्चन नंबर 1 में बिट नंबर 1, बिट नंबर 4 भी हो गया. आज के क्लास में अपन फोर्थ, और शायद फोर्थ ऑलरेडी हो गया था, फिफ्थ ले लिया मैं. ओके, और नाइन्थ ले लिया. तो इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में सर. यहाँ पे एट्थ और ट्वेल्थ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ. ओके, तो ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन जो भी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. ओके, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोगों को सर साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस, वॉइस क्लियर है प्लीज? नहीं है तो आप लोग सर मुझे प्लीज कमेंट करके बता दो. और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन आप लोग कैसा लग रहा है, क्या क्लियर है? आप लोग कुछ मॉडिफिकेशंस करने का तो प्लीज बताओ. ओके, तो नेक्स्ट इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे सर क्वेश्चन. अभी यस, अभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया. मैं क्या बोल रहा था इसके पहले? फिफ्थ क्वेश्चन और इसी के साथ नाइन्थ क्वेश्चन. अभी और एक क्वेश्चन शायद होगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पे पहले कवर कर देता हूँ. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है. आप लोग ये करना चाहिए सर, पहले मैं क्वेश्चन आप लोग एक्सप्लेनेशन देता हूं तो आप लोग करो, मैं तुम्हारे को बीच बीच में टाइम भी देता हूं. चेक वेदर द रिलेशन आर इन ए, यहाँ पे देखो चेक वेदर द रिलेशन आर, यहाँ पे रिलेशन आर है इन आर. रिलेशन आर इन आर का मतलब समझ में आया आप लोगों को? रिलेशन आर इन आर का मतलब दिस इज द रिलेशन विच इज गोइंग टू डिफाइन ऑन रियल नंबर. समझ में आ रहा है ना सर? और एक और यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वी आर गोइंग टू डिफाइन द रिलेशन ऑन रियल नंबर. ओके, रियल नंबर के ऊपर आप लोग डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन को. ओके, दैट रिलेशन इज इक्वल टू, दैट इज द रिलेशन हियर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a, b दैट a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब.
क्या बता रहा है यहाँ पे ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यों बोल रहा है सर। ओके तो अपना कंडीशन होगा सर ये, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दे दो, ये लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब बोल के बोल रहा है, तो कंडीशन इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो रिफ्लेक्सिव होता, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो सिमेट्रिक, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो सर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसिटिव बन सकता है। यस तो चेक करेंगे क्या, क्या आप लोगों को मैं टाइम दे सकता हूँ, क्या आप लोग सर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग टाइम ले सकते हैं सर, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है टाइम भी। ओके तो यहाँ पे सर आप लोग प्लीज टाइम भी ले सकते हैं। तो चलिए मुझे बताओ क्या रिफ्लेक्सिव बन सकता है क्या ये। यस रिफ्लेक्सिव बनना बोलते क्या बनना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। सर उसके अंदर डबलेट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आर दिया है, यहाँ पे सेट कौन सा अपना आर बोलते कौन है, रियल नंबर से। यस तो रियल नंबर से बोलते सर 1,1 भी होता, 2,2 भी होगा, 3,3, 4,4, 1/2 होता, क्या मतलब बताओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1/2 क्यों लिए, सर 1,1 लिए थे बहुत अच्छा लग रहा था, 1/2 क्यों लिए। देखिए आप लोग वहां पे आर जो दे रहा है, आर क्या बता रहा हूं मैं, इट इज नॉट ए इंटीजर। ओके इट इज एक्चुअली रियल नंबर, मींस 1/2 आल्सो प्रेजेंट इन दिस रियल नंबर और नॉट। 1/2 रियल नंबर में रहता कि नहीं सर, तो हर एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना सर। तो यहाँ पे 1/2 जब लेता हूं मैं, तो 1/2 का 1/2 एक डबलेट है कि नहीं, भाई डबलेट की बात कर रहा हूं मैं, ऑमलेट की नहीं है प्लीज। ओके डबलेट का मतलब क्या होता है, first element second element in the ordered pair should be same. Yes 1,1 first element 1 second element भी 1, 1/2 1/2 first element 1/2 second element भी क्या है 1/2, इसलिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आप लोग इसके रिलेटेड आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए की जगह पे 1/2 लगा दो, बी की जगह पे 1/2 लगा दो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होता क्या बताओ, होता। यस इधर 1/2 लगा दिया सर, और इधर भी 1/2 लगा दो, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल पावर 3, 1/2 होल पावर 3 क्या होता, 1/8 बन जाएगा ना सर वो, 1/8 1/8 1/2 से बड़ा रहेगा, 1/8 देखो 1/8 1/2 से बड़ा रहता क्या, ये देखो 1/2 ये होगा। यस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1/2 ये होगा, अभी ये 1/8 होगा सर, यहाँ पे देखो 1/8 मैं ले रहा हूँ। अब लो देखो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 1/2 या 1/8, डेफिनेटली सर 1/2 होगा ना सर बड़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है लेस देन आर इक्वल टू, ये लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या है मालूम है तुम्हारे को, ये जो है छोटा रहना चाहिए, अभी ये बड़ा रहना जब कंडीशन जाके सेटिस्फाई होता। यस तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर, इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा रब कर दूंगा सर, ज्यादा ही होगा ये। यस तो यहाँ पे क्या होता सर, जब सेटिस्फाई होता तो ये 1/2 कामा 1/2 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर आप लोग 1,1 लेंगे तो डेफिनेटली होता सर 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 को इक्वल भी हो सकता। यस अगर 2,2 लिए तो यस 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, यहाँ पे ये इज इक्वल टू 2 ले लिया। यस लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 क्यूब लिख दिया। यस 2,2 लिया था ना भाई, 2 क्यूब कितना होता बताओ, 2 क्यूब 8, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। यस सर ये डेफिनेटली करेक्ट है। बोलता अगर आप लोग इंटीजर्स लेंगे तो मे भी वो सेटिस्फाई होता होगा। यस अगर नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस है, वो भी बोल रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव लिया बोल के बच गए, नेगेटिव लिए तो शायद वो जाएंगे, -1 का मान -1 ले लो, -1 का मान -1, नहीं तो -2 का मान -2 ले लो आप लोग, इधर -2 लिखता हूँ। यस सर नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया -2 होल क्यूब क्या होता है -8 बन जाएगा, अभी बता दो, अभी बच गए क्या फंस गए। यस बच गए कि फंस गए भाई, -2 यहाँ पे -8 है, क्या -2 बड़ा रहता -8 बड़ा रहता, ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं मैं इट इज अ करेक्ट और रॉन्ग, डेफिनेटली इट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ रीजन इज व्हाट, -2 इज ग्रेटर देन -8। ओके तो इसलिए याद रख लो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। यस डबलेट ले लिया तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे सर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर, जस्ट आई विल एरेज दिस वन। ओके अभी देखो यहाँ पे मैं आंसर लिखने जाता हूँ। यस गिवन दे दिया, यहाँ पे रिलेशन ले लिया था। यस तो अभी रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो मैं ले लिया ए इज इक्वल टू 1/2 और बी इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो यहाँ पे ले लेते इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक इधर सब्स्टिट्यूट करना, बस इसमें आप लोग याद रख लो जो भी ए एंड बी वैल्यूज ले लेना ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो बस से ये 1/2 ले लिया और बी 1/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस कर दिया ना सर, तो जब 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल क्यूब, ये करेक्ट है क्या, डेफिनेटली नहीं होगा, ये 1/8 बन रहा है, बताया था ना मैं आप लोगों को ये 1/8 बन रहा है, 1/2 बड़ा रहेगा भाई, डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में दोनों भी 1 1 है, डिनोमिनेटर में इधर 2 इधर 8 है, जब डिनोमिनेटर बढ़ते जाता है तो उसका वैल्यू कम होता। यस
तो 2 यहाँ पे है, इधर 8 है, 8 है बोल तो 2 से कंपेयरिंग करो तो 8 बड़ा है, तो इसलिए सर ये वैल्यू छोटा हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए इसका आंसर 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/8 रहना चाहिए। 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल क्या रहना चाहिए 1/8 रहना चाहिए सर, ये होगा। ओके, तो ये रहना चाहिए, थोड़ा सा 8 में अच्छा नहीं लिख पाया, सॉरी। तो 1/8 रहना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है सर, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। यस, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? इट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है बोलते क्या होता है, रिफ्लेक्स होता कभी नहीं होता। So that's why whatever the ordered pair we are taking 1/2 comma 1/2 which is does not belongs to relation, ये relation के अंदर नहीं है, ये तो डबलेट था लेकिन relation के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये बन गया कि सर क्लियरली इट इज, क्या बोल सकते हो आप लोग, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। यस, समझ में आ गया ना सर, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। यस, तो अभी ये शायद आप लोगों को समझ में आता होगा। यस, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करते जाओ, मैं उसके रिलेटेड बोल दूंगा यहाँ पे। यस, अपन सिमेट्री देखेंगे एक बार, तो आप लोग बताओ भाई सिमेट्रिक बन सकता है नहीं बन सकता? यस, सिमेट्रिक बनने के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा बी रहे तो बी कामा ए भी रहना चाहिए, 1/1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 रहना चाहिए ना। तो आप लोग ये कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ए इज इक्वल टू 1 ले लो, बी इज इक्वल टू 2 ले लो, ये सेटिस्फाई करता कि नहीं? ए के जगह पे 1 ले लिया और लेस देन आर इक्वल टू, बी के जगह पे 2 ले लिया, 1 कामा 2 ऑर्डर्ड पेयर में बी के जगह पे 2 ले लिया, तो 2 क्यूब कितना होता, 2 क्यूब बन जाएगा 8। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है बताओ? 1 सर 8 से छोटा ही रहेगा ना? यस, एग्जैक्टली करेक्ट। अभी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कौन सा लिए थे आप लोग? ऑर्डर्ड पेयर में ले लिया था 1 कामा 2। यस, ऑर्डर्ड पेयर कौन सा लिए थे अपन? 1 कामा 2 ले लिया था। तो यहाँ पे इसको पलट के ले लो। यस सर, ये ऑर्डर्ड पेयर ये रिलेशन के अंदर है, कुछ डाउट नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको पलटा देता हूँ गाड़ी को भी। गाड़ी को जब पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अरे 1 2 कामा 1 हो जाएगा। यस, तो ये होगा सर 2 कामा 1। यस, मैं थोड़ा सा आप लोग समझाने के वास्ते यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, 2 कामा 1 हो जाएगा सर। अभी ये पलट दिया, 2 कामा 1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? फिर से देखो, बोलते याद रख लो, ये 2 बन गया, बी 1 हो गया सर। तो यहाँ पे ए के जगह पे लिख दिया मैं 2, यहाँ पे देखो लेस देन आर इक्वल टू। यस, या बी के पे 1, 1 क्यूब कितना होता 1। तो चेक कर लो, 2 2 जो है 1 से छोटा रहेगा, ये सिंबल क्या बता रहा है, दिस इज द लेस एंड दिस द ग्रेटर। यस, तो यहाँ पे 2 जो है 1 से कम रहेगा क्या? नहीं सर। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 1 कामा 2 विच इज बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 कामा 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आ रहा है ना सर? तो 1 कामा 2 है तो रिलेशन में 2 कामा 1 नहीं है, उसका भाई तो नहीं है ना सर, तो वो क्यों ठहरेगा? तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं बन सकता। तो एक बार चेक कर लो आप लोग, मैं वही लिखा यहाँ पे, ये 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, उसका मतलब 1 कामा 2 होगा ये। तो ये सेटिस्फाई कर दिया था, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बोला था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, और 2 यहाँ पे जो है सर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्या ये बताओ? इट इज रॉन्ग। ओके, सो दैट्स वाई 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बोल दिया सर। यस, तो ये 2 कामा 1 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक पैरवी नहीं रख सकता। यस, इसलिए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक बोल के मैं बोल दिया। यस, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, ताकि आप लोगों को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा होगा। यस, समझ में आ रहा होगा क्लियरली। प्लीज आप लोग पैरेलली कमेंट करते जाओ। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव के लिए ए कामा बी लिया था तो बी कामा सी था, सोचेंगे ए कामा बी लिया था भाई, तो बी कामा सी भी था उसके अंदर, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर बता दो मुझे, क्या होना चाहिए? ए कामा सी भी रहना चाहिए। बीच में के दोनों जो सेम रहेंगे ना वो कट कर दो फट बोल के ऐसा। यस, जब दोनों को फट बोल के कट कर दिया, बचेगा कौन? ए कामा सी बच जाएगा सर। यस, बहुत ही आसान से है। तो एक बार यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा इसे बैक ले रहा हूँ। क्यों बैक ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दूंगा आप लोगों को मैं। यहाँ पे देखो, इधर ले लिया सर ये पार्ट, मैं फिर से इसे यहाँ पे ले रहा हूँ सर। यस, एक बार यहाँ पे देखो, इधर लिख दूंगा कि सर क्या बोले, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ये लेस देन आर इक्वल टू, इधर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यही लिया था ना अपन, तो बी क्यूब लिख दिया। यस, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, बोलते ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ये तो कंडीशन है। तो अब मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ, अभी ए इज इक्वल टू आप लोग 1 ले लो। यस, नहीं तो ये काम करो आप लोग, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, शायद वो समझ में बोल तो सेटिस्फाई कर देगा, कुछ डाउट नहीं है। बोल तो आप लोग इसके अंदर इंटीजर सेटिस्फाई कर देंगे सर। ओके, इंटीजर्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे, कुछ डाउट नहीं है। बोल तो इंटीजर्स बोल तो हर एक इंटीजर का नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगे, नहीं कि वो चेक करेंगे, पॉजिटिव तो सेटिस्फाई कर देंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ले लिया, यस 1 लेस देन आर इक्वल टू क्यूब सेटिस्फाई करेगा, और बी इज इक्वल टू ये फिर से
ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, बी इज इक्वल टू 3 ले लिया, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, यस नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर दिया सर। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर बोलते हो, थोड़ा सा यहाँ पे इसको पलटा देता हूँ सर, मैं डिफरेंट वैल्यू लेके आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या डिफरेंट वैल्यू इसके अंदर लेंगे सर बोलते हो। यहाँ पे ए इज इक्वल टू मान लो कि मैं 3 ले लिया था। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ले लिया सर 3। अभी बी इज इक्वल टू क्या लेंगे सर बोलते हो, सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 3/2, बी इज इक्वल क्या ले लिया मैं 3/2 लेता हूँ सर। ओके, जब ए इज इक्वल टू 3 ले लिया था और बी इज इक्वल टू मैं 3/2 ले लिया, मान लो 3/2 ले लिया, ये टोटल को होल क्यूब होगा। अभी आप लोग चेक करके देखो, मुझसे तो पहले आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका, ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ये 3 लिया था, बी 3/2 लिया था मैं, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 लेस देन आर इक्वल टू 3/2 होल क्यूब होता क्या, 3 क्यूब बोल तो कितना हो जाता, ये क्यूब तो दोनों को अप्लाई होगा ना, 3 क्यूब कितना 27, 2 क्यूब कितना 8, 27 बाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 27 बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 8। तो आप लोग चेक करके देखो सर, 27/8 बोलते डेफिनेटली 3 से ज्यादा होगा, इसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा सर। यस, डाउट नहीं इसके अंदर। मैं यहाँ पे और एक बार बता रहा हूँ, ये क्या लिया था 3, बी कितना लिया था 3/2, कंफ्यूजन नहीं रहना। यस, अभी नेक्स्ट और एक कंडीशन लेता हूँ, ये समझ में आऊंगा, ये इज इक्वल टू मैं 3/2 लेता हूँ। अभी समझ में आ रहा होगा क्यों बोलते 3, अपनों को दो ऑर्डर पेयर बोलते लेना चाहिए, ए कामा बी और बी कामा सी, तो ए इज इक्वल टू मैं लेता हूँ सर अभी 3/2। यस, ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बी इज इक्वल टू क्या लेंगे सर बोल तो 6/5 लेता हूँ, 6/5। एक मिनट, एक इसे थोड़ा सा मैं एराइज कर देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा ही गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे देखो ये पार्टी मैं रख ये कर दिया। यस, तो एक मिनट ठहरो, इसमें से फिर से पेन लेता हूँ। यहाँ पे देखो इधर 5 था, यस ये होगा 5। अभी ये टोटल को फिर से क्या होता, होल क्यूब होगा ना, ये टोटल को, जब ये टोटल को होल क्यूब है, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है देखो, 3/2 तो था, यहाँ पे 6 क्यूब बोल तो 216 क्या तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5 क्यूब तो 125 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होगा सर, डेफिनेटली ये वैल्यू कितना 3/2 कितना हो जाता, 3/2 तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, तो ये भी कितना होता सर 125 बोलते, ये भी 1 पॉइंट समथिंग हो जाता, डेफिनेटली ये भी सेटिस्फाई होता। तुम चेक करके देखो, बोलते इसका मीनिंग होगा कि अभी मैं ये वैल्यू क्या ले लिया बताता हूँ, आपने 3 वैल्यू चाहिए ए बी सी, क्यों बोलते ए कामा बी कामा सी, जब ए कामा बी कामा सी है तो डेफिनेटली ए कामा सी भी रहना चाहिए, यही है सर। ज्यादा आप लोग प्लीज, ज्यादा आप लोग डेप्थ में मत जाओ, ट्रांसिटिव बोलते ए कामा बी है, बी कामा सी है और बी भी चलेगा, ए कामा सी रहना। तो यहाँ पे मैं ये क्या लिया मैं वो बताता हूँ, चलिए इसे मैं ये बोलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे ए बोल दिया, और ये कौन है मालूम, ये बी है, और ये कौन है मालूम, ये सी है सर। क्लियर है, अभी देखो यही बी इधर आ गया कि नहीं सर, तो ये तो अभी ले लिया, ए लेस देन आर इक्वल टू बी सेटिस्फाई होगा, और यहाँ पे बी लेस देन आर इक्वल टू सी भी सेटिस्फाई होगा कि नहीं, यस सर, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो अपना का आंसर क्या होना चाहिए अभी, डेफिनेटली अभी क्या होना चाहिए इसमें बोलते ये लेस देन आर इक्वल अगर सी क्यूब बनता है, ये लेस देन आर इक्वल क्या होना चाहिए अभी, सी क्यूब बना, बोलते ये बोलते 3 लेस देन आर इक्वल टू 6/5 होल क्यूब अगर सेटिस्फाई कर देगा ना, तो अपना आंसर ही होगा। तो ये पूरा जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके आप लोग खिचड़ी बना दे रहा हूँ इसके अंदर, तो आप लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं होगी शायद। तो यहाँ पे देखो मैं आराम से बता देता हूँ, अभी ले दो, ये 3 ले लिया, बी 3/2 ले लिया, सी 6/5, जो इसके पहले बताया था ना वही ले लिया मैं यहाँ पे। यस, ये 3 ले लिया, बी 3/2 है, सी 6/5 है। यस, इसमें कुछ डाउट है क्या, 3 वैल्यूज ले लिया ना अपन, जो इसके पहले एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी चेक करेंगे अपन क्या ये कामा बी सेटिस्फाई करेगा क्या, नेक्स्ट बी कामा सी सेटिस्फाई करेगा क्या, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो ए कामा सी भी सेटिस्फाई करना, इतना ही काम है। किसमें सब्स्टिट्यूट करना, इनइक्वालिटी दिया ना, ये लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तीनों सेटिस्फाई होना, पहले कौन लेना, ए और बी का कॉम्बिनेशन। चलो यहाँ पे देखो एक बार ले लिया मैं, फर्स्ट वन ले लिया, देखो ए और बी का कॉम्बिनेशन, ये देखो ये सर करेक्ट है सर, सेटिस्फाई करेगा बोला था ना मैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन में है। यस, क्यों सेटिस्फाई कर दिया ना कंडीशन को, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सर रिलेशन के अंदर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वन क्या लेंगे सर, ये दोनों को ले लो, ये देखो बी कामा सी, इसका मतलब तो ये दोनों सेटिस्फाई कर दिए सर, इसलिए मैं बिलोंग्स टू रिलेशन बोल दिया। अभी देखो ए कामा बी सेटिस्फाई होगा, बी कामा सी सेटिस्फाई होगा, अभी क्या होना चाहिए सर, डेफिनेटली ए कामा सी सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा, ए कामा सी सेटिस्फाई होना चाहिए सर। यस, तो चेक करता हूं मैं ए कामा सी सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 लेस देन आर इक्वल टू 6/5 होल क्यूब,
6/5 होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1.7 क्या होता है? चेक करके देख लो आप लोग। 6/5 होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है मालूम? 1.7 क्या तो आता है सर? लेस देन 2 होगा डेफिनेटली। ये लेस देन 2 हो रहा है, ये वैल्यू लेस देन 2 हो रहा है, तो ये तो 3 है। क्या मुझे बताओ 3 लेस देन 1.7, नहीं तो यहाँ पे 2 लगा दो ना सर। 1.7 ये हो सकता क्या? मुझे बताओ। ये करेक्ट है सर? ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। So that's why it is wrong. Okay, so this is wrong, so that's why I'm writing 3 comma। इसका मतलब ये होगा कि a comma c ये रिलेशन के अंदर नहीं है। तो आप लोग में क्या बोला था सर? एक बात याद रख लो, जब a comma b अपने पास था और b comma c भी अपने पास था, तो डेफिनेटली कौन रहना चाहिए? a comma c। तो a comma c तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे बन गया r is not a transitive। आर क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसिटिव नहीं बन सकता, याद रख लो आप लोग। आर ट्रांसिटिव नहीं बन सकता, तो ये हो गया सर डेफिनेटली कि ये इसमें से आप लोग फाइनली क्या बोल सकते हो बोले तो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, चेक कर लो बोल के बोला था। तो अपन क्या बता दिया यहाँ पे? चेक करो बोले तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता, यस। और इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला था मैं? ये सिमेट्रिक भी नहीं बन सकता। इसी के साथ यहाँ पे मैं और भी बता सकता हूँ आप लोगों को, क्या सर बोलता हूँ? ये ट्रांसिटिव भी नहीं बन सकता फाइनली। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव हो गया सर। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे 9th क्वेश्चन में बिट नंबर 1, ये भी फिर से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे कि 9th क्वेश्चन में बिट नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, यहाँ पे एक सेट भी दे दिया। ओके, x बिलोंग्स टू z, z बोलते इंटीजर है। ओके, x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे x कितना है? x कहां से कहां तक है? टोटल इंटीजर से क्या x नहीं है? वहां पे कंडीशन दे दिया, लगाम लगा दिया सर गाड़ी को। क्या लगाम लगा दिया मुझे बताओ? 0 और 12 के बीच में रहेगा x, समझ लो यहाँ पे 0 और 12 के बीच में रहेगा x। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे देखो 0 और 12 के बीच में बोलते हैं x वैल्यू विच इज इन बिटवीन व्हाट 0 1 विच इज नथिंग बट 0 1 2 3 अप टू 12 रहेगा सर x। ओके, तो पूरा इंटीजर्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि सर r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू यहाँ पे देख लिए तो सर रिलेशन है। रिलेशन किस तरीके का है? ऑर्डर्ड पेयर सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये यहाँ पे क्लियरली बता रहा है, यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 रहना चाहिए बोल के बोल रहा है। ओके, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 बोलते जो माड के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन से वैल्यूज? 0 to 12 के बीच में वैल्यूज, 0 to 12 के बीच में वैल्यूज अगर मॉडुलस के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू मान लो कि 0 ले लिया मैं, b इज इक्वल टू 4 लिया था, तो 0 माइनस 4 कितना होगा? 0 माइनस 4 माइनस 4, यस, एंड मॉड है उसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 आया। 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यस 4 इज एब्सोल्युटली मल्टीपल ऑफ 4, तो इसे चेक करना चाहिए आप लोग। ओके, तो इसके हिसाब से ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता क्या आप लोग वो भी बताना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए पहले तो वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव, सॉरी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होना चाहिए, यस। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे कि 1 बाय 1 यहाँ पे, यस, यहाँ पे अपन देखेंगे कि सर 1 बाय 1 ये तो मालूम है इधर रिलेशन है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव के बारे में पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना? डबलेट्स यहाँ पे सेटिस्फाई करना, 0 to 12 के बीच में डबलेट्स। यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट नहीं दिया सर, पहले के क्वेश्चन में अपनों को रियल नंबर दिया था, उसमें सब कुछ क्या बोलते सर वहां पे ऑर्डर्ड पेयर आ सकते थे, यस, टोटल रियल नंबर्स उसके अंदर आ सकते थे। लेकिन अभी इसके अंदर सर क्या बोल रहा है मालूम? इसी के अंदर सर सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ पे 0 to 12 एलिमेंट्स है, तो 0, 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 0 माइनस 0, यस 0 माइनस 0 0 ही होगा। 0 होता तो 0 इंटू 4 फिर से 0 होगा ना सर, बोलते सेटिस्फाई कर दिया ना, 0 इंटू 4 लिखा मैं, फिर से आंसर 0 होना चाहिए। ओके, 0 इंटू 4 क्या होगा सर? 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि सर वो रिजल्ट जो है वहां पे ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता। जब आप लोग 1, 1 ले लो, 1 माइनस 1 फिर से 0, 0 इंटू 4 फिर से क्या होता? 0 ही होता, तो सेटिस्फाई कर दिया मल्टीपल ऑफ 4। 2 माइनस 2 ले लो, 0, 0 इंटू 4 फिर से, बोलते जब रिजल्ट 0 आता है कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा 0, क्या बोलते 0 इंटू 4 लिखो फिर से 0 ही होता है ना सर। इसलिए ये क्या बन जाएगा सर? रिफ्लेक्सिव बन सकता है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यस। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सर, कुछ डाउट नहीं इसके अंदर। तो मैं आप लोग बता देता हूँ, फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ये, बोलते यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ये। ओके, एक मिनट, यहाँ पे ये यहाँ पे ले रहा हूं मैं, इधर एलिमेंट कौन सा है देखो एक बार, यहाँ पे जो एलिमेंट ले लिया मैं, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है बोल तो ये रहेगा सर, एलिमेंट बिलोंग्स टू ये। एंड यहाँ पे और एक बता रहा हूँ कि मैं क्या बोल के सर, यहाँ पे एक मिनट है,
ये कामा ये बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। क्यों हो गया मालूम? आप लोग एक एलिमेंट क्या होता है, ए इज एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 0 to 12 एलिमेंट्स है। 0 1 2 3। आप लोग कौन सा भी एलिमेंट ले लो, 1 कामा 1, ए इज इक्वल टू 1 ले लो, 1 कामा 1 डेफिनेटली रहेगा रिलेशन के अंदर। उसका रीजन क्या है? इधर सेटिस्फाई होता है। 1 माइनस 1 0 होता। देखो ए इज इक्वल टू, मैं मान लो कि ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू मैं 1 ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्या होता है, 1 कामा 1 बन जाएगा ऑर्डर पेयर अभी, 1 कामा 1। अगर आप लोग 1 कामा 1 लेंगे तो मॉडुलस के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1। ओके, तो जस्ट आप लोग मैं समझाने के लिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, 1 माइनस 1 रिजल्ट 0 होगा। ये 0 जब भी आता है ना, तो आप लोग एक काम करो, 0 इंटू 4 लिखो, मुझे बताओ 0 इंटू 4 फिर से 0 होगा कि नहीं? जब 0 इंटू 4 फिर से 0 होता तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट विच इज मल्टीपल ऑफ 4 बनता कि नहीं सर? यस, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग 1 कामा 1 एक सेटिस्फाई करते तो 2 कामा 2 नहीं करेगा, करेगा 12 कामा 12 करेगा, 0 कामा 0 करेगा। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर जितने डबलेट्स है, टोटल 13 डबलेट्स आते हैं ना सर, 0 to 12 बोले तो 13 डबलेट्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए रिफ्लेक्सिव। कुछ डाउट नहीं है सर, रिफ्लेक्सिव समझ में आऊंगा बोल के मैं सोचता हूँ। प्लीज आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी करते जाओ। यस, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसी के साथ यहाँ पे यही लिख दे रहा हूँ मैं। इधर जब 1 माइनस 1 लिखा था ना, इधर ये कामा ये है, तो ए माइनस से 0 होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इसके अंदर कुछ डाउट नहीं है। चलिए रिफ्लेक्सिव समझ में आया। जब इधर रिजल्ट 0 आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो 0 इंटू 4 लिख दो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट वन देखो, इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री की तरफ जाएंगे। जब अपन सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं सर, सिमेट्री के लिए क्या होना, सिमेट्री के लिए 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी रहना, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी रहना उसके अंदर है। जब 3 कामा 4 बोला, 4 कामा 3 भी रहना, उसका रिवर्स रहना चाहिए। यस, तो यहाँ पे जो देखो, अभी ऐसे कई सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर दिए, ये क्या नया क्वेश्चन नहीं होता आप लोगों के लिए। यस, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी ये ले लिया मैं, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। यस, तो मान लो कि मैं ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 लिख दिया, समझेंगे। ओके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, प्लीज फील होने की जरूरत नहीं, आप लोग शायद समझ में आ रहा होगा। मैं b इज इक्वल टू 2 ले लिया सर, a इज इक्वल टू 1 ले लिया और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जब यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है सर, बोलते हैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, याद रख लो। ये जब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा सर, तो ही आप लोग a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू, ये रिलेशन के अंदर रहेगा, ऐसा आप लोग लेना चाहिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, बोलते ये निकाल देता हूँ। ओके, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ सर, बोलते यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 ले लिया, ये ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा 1 कामा 2 इसके अंदर, क्यों नहीं रहेगा समझ में आएगा ना? तो 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1 होता है, मॉड माइनस 1 इज 1। ओके, रिजल्ट 1 आया बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 के लिए, यहाँ पे इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे a इज इक्वल टू मान लो कि 1 ले लिया, अच्छे से समझ में आ जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ले लिया, सोचेंगे तो 1 माइनस 5 कितना होता भाई, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 हो जाएगा सर 4, तो मॉडुलस ऑफ माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे कितना, मॉडुलस ऑफ माइनस 4 हो जाएगा सर यहाँ पे डेफिनेटली, यस मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा सर। अब ये तो समझाने के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ 1 और 5 क्यों ले रहा हूँ, बोलते हर एक स्टूडेंट को समझ में आता है, जब 1 और 2 लेता हूँ कंफ्यूजन हो जाता है। यस, तो इसलिए बोल रहा हूँ 1 माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम, 1 माइनस 5 माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस 4, तो रिजल्ट 4 आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता। अगर इसका रिवर्स भी ले लो, जब a इज इक्वल टू 5 ले लिया, b इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे ले तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 बन जाएगा सर 4। ओके, तो 4 अगेन मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता है, बोल दो इसके अंदर 1 कामा 5 है तो 5 कामा 1 भी रहेगा सर, इसका मतलब। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ले लिया, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यस, ये तो दिए सो क्वेश्चन में ही है, अभी देखो यही रिजल्ट में यहाँ पे लिख दिया। तो लेकिन मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो इसमें से। जब आप लोग माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन नहीं तो माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। यस, जब भी आप लोग मैं आप लोगों को हर बार बोलते रहता हूँ, क्या बोलता हूँ, जब भी एक स्टेटमेंट में से मैथमेटिक्स के एक स्टेप में से आप लोग माइनस कॉमन निकालेंगे, तो प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बोलता हूँ बी माइनस ये होगा, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस ऑफ यहाँ पे बी माइनस ये होगा। यस, तो माइनस ऑफ बी माइनस ये हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे मालूम, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ बी माइनस हो गया। अभी इसका रिजल्ट में फिर से, इधर तो माइनस कॉमन निकाल दिया था ना, तो फिर से यहाँ पे ये मॉडुलस ऑफ माइनस, ये टोटल पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, ये बोलता हूँ,
यस, मान लो ये उसलिए तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ये बोल दिया तो मॉडुलस ऑफ माइनस ये फिर से यही बन जाएगा ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है ना मॉड के अंदर, तो ये नेगेटिव चले गया तो फिर से रिजल्ट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इधर जो भी रिजल्ट था यही इधर लिख दिया, मॉडुलस ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी माइनस ये समझ में आ रहा है ना सर, मॉडुलस ऑफ क्या लिख दिया बी माइनस ए, बोले तो यही रिजल्ट में से मैं लिख रहा हूँ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी को मैं माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया, यस इनमें से फिर से अपने क्या होगा मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए होगा सर, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जब मल्टीपल ऑफ 4 बनता है तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए भी उसमें से आया, ये भी क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, इसका मीनिंग ये होगा जब ए कामा बी रिलेशन में है तो डेफिनेटली इसका मीनिंग बी कामा ए भी रिलेशन में रहेगा, जब याद रख लो एक बात आप लोग, जब 1 कामा 5 रिलेशन में है तो डेफिनेटली 5 कामा 1 भी रहेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे मॉड है सर, याद रखो ये मॉड रहने से क्या होता है नेगेटिव रहता है पॉजिटिव हो जाएगा, जो 1 माइनस 5 लिया तो 5 माइनस 1 भी उसके अंदर रहेगा सर, ओके तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है यहाँ पे अगर समझ यहाँ पे तुम्हारे को समझाने के लिए और भी लेता हूँ, जब ए इज इक्वल टू 1 ले लिया बी इज इक्वल टू 3 लिए थे, 1 माइनस 3 तो 2 बन जाएगा, 1 माइनस 3 2 हो जाएगा सर, वहां पे इसका मतलब क्या बोलते हो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बन सकता, ओके ये समझ लो आप लोग, तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं रहेगा, जो ऑर्डर पेयर रहेगा उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं सर, ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये सिमेट्रिक सर इजीली बन सकता है, रीजन मालूम हो गया ना, जब ए माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसके में से माइनस कॉमन निकाल दे तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं मॉड रहने से, तो फिर से बी कामा ये बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा सर, ओके इट इज ए सिमेट्रिक, ओके नेक्स्ट यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे देखता हूँ सर, नेक्स्ट सिमेट्रिक होने के बाद क्या होता है ट्रांसिटी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखो जब ट्रांसिटी के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी ट्रांसिटी के बारे में बात करें तो जब ए एंड बी सेटिस्फाई कर दिया, ऑलरेडी दिया ना सर क्वेश्चन में तो दे दिया ए एंड बी, जब ए एंड बी सेटिस्फाई करा था यस ऑलरेडी दिया मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उसी के साथ बी माइनस सी भी सेटिस्फाई करना बोल के कंसिडर करिए अपन, ओके कंसिडर कर रहा हूँ बी और सी, ओके तो बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 लिखना चाहिए, जब ए माइनस बी सेटिस्फाई कर दिया बी माइनस सी सेटिस्फाई कर दिया तो डेफिनेटली कौन सेटिस्फाई करना चाहिए भी ए माइनस सी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर हो गया सर, ज्यादा टफ नहीं है, जब भी ट्रांसिटी के बारे में बात करेंगे तो तीनों के बारे में बात करना ए बी सी यस, तो यहाँ पे देखो ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी सेटिस्फाई कर दिया, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी दिया सर, तो मान लो कि मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी सेटिस्फाई कर दिया था, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी सेटिस्फाई कर दिया सर, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी सेटिस्फाई कर दिया तो और कौन रहना चाहिए इसमें से सर, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कौन फर्स्ट और लास्ट, ये देखो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों ही सेटिस्फाई करना चाहिए, यस तो ये कर दिए तो आंसर होगा, तो वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यस मान लो आप लोग मैं समझाने के लिए यहाँ पे और एक भी ले सकता हूँ 159 ले लो, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, यस यहाँ पे बता देता हूं मैं आप लोगों को ए इज इक्वल क्या ले रहा हूँ 1, तो ए इज इक्वल टू मैं 1 ले लिया और बी इज इक्वल टू 5 ले लिया, समझाने के लिए प्लीज ये, तो b इज इक्वल टू 5 लेने के बाद नेक्स्ट c इज इक्वल टू लेता हूं मैं यहाँ पे, जो देखो c इज इक्वल यहाँ पे ले लेंगे सर 9 ले लिया, यस c इज इक्वल कितना ले लिया 9, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई कर दिए 1 कामा 5 1 माइनस 5 कितना 4, ओके मल्टीपल ऑफ 4, जब ये a एंड b होगा b एंड c ले लो समझाने के वास्ते लिया 5 माइनस 9 फिर से 4 मतलब नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव हो जाता मॉड है, तो ये भी सेटिस्फाई कर देता, ओके 5 माइनस 9 माइनस 5 फिर से क्या होता 4 ही बन जाएगा सर, ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो डेफिनेटली ये चेक करके देख लो ये मल्टीपल ऑफ 4 बनता क्या, ये माइनस सी 1 माइनस 9 कितना होता अभी 1 माइनस 9 तो माइनस 8 तो है नेगेटिव बोलते मार्ड है पॉजिटिव 8, ये 8 मल्टीपल ऑफ 4 रहता कि नहीं डेफिनेटली होगा 8 मल्टीपल ऑफ 4, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ, तो कुछ आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो मैं लेट कंसिडर कर रहा हूँ ये कामा भी रिलेशन में है और बी कामा सी भी रिलेशन में है सर, मैं पहले कंसिडर कर ले रहा हूँ क्या बोलूं, ये कामा बी तो रिलेशन में है ऑलरेडी दिया क्वेश्चन के अंदर और बी कामा सी भी रिलेशन के अंदर है, सोचो तो डेफिनेटली क्या होना मालूम, यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हुआ तो डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देंगे बी माइनस सी भी क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यस उन्होंने दिया था ना सब अपनों को, तो ये याद रख लो ये मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पे लास्ट में अपने क्या बताना चाहिए मॉडुलस ऑफ ये दोनों कट कर दो पहले, मॉडुलस ऑफ क्या बताना चाहिए ये माइनस सी आल्सो मल्टीपल ऑफ 4 बोल के अपन बताना चाहिए, यस तो इसी के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर बोलते मैं यहाँ पे ले लिया, ये थोड़ा सा पार्ट कट कर देंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे जब ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था तो उसे मॉड हटा देके
यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, यहाँ पे ले लिया कि a माइनस बी बोल के ले लिया। ओके, तो यहाँ पे जो ले लिया तो सर यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ले लिया मैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a माइनस सी बोल तो विदाउट मॉडुलस ले रहा हूँ मैं, a माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 होगा सोचेंगे, बोल तो 1 माइनस 5 ले लो, 1 माइनस 5 रिजल्ट आ गया अपनों कितना -4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बन सकता है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर, यहाँ पे मान लो कि b माइनस सी भी यहाँ पे जो कौन सा तो एक वैल्यू ले लो, अगर वो भी मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे सर, बोलते इनमें से नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया ना अभी, इनमें से नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता देंगे, ये दोनों तो मल्टीपल ऑफ 4 है कि ना सर वैल्यूज, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस सी जरूरत था अपनों को, a माइनस सी, अगर a मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है तो दोनों को ऐड कर लिए तो फिर से मल्टीपल ऑफ 4 होता कि नहीं, कैसा सर, यहाँ पे देखो, मान लो कि इसका आंसर अपनों को 4 आया था, a माइनस बी कर दिया था 4 आया था, a इज इक्वल टू 5 ले लो, a इज इक्वल टू 5 ले लिया, b इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4 हो गया तो सर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका आंसर ये माइनस बी बोल तो 4 लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे सर, अभी बी कितना लिए थे 1 है, यस, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर मैं b इज इक्वल टू 1 ले लिया। ओके, और यहाँ पे c इज इक्वल टू ले लो 9, तो 1 माइनस 9 हो गया सर -8, ये होगा -8। और आप लोग ये दोनों को ऐड कर लो, फिर से ये मल्टीपल ऑफ 4 होता है कि नहीं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ तो 4 हो रहा है ना सर, तो डेफिनेटली ये मल्टीपल ऑफ क्या बन सकता है, 4 बन रहा है सर, ये यस, ये समझाने के लिए आप लोगों को ले रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा सर। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ये दोनों का अगर आप लोग ऐड करेंगे फिर से मल्टीपल ऑफ 4 ही होना चाहिए, ये वैल्यू ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 4, ये भी वाली मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये दोनों का आप लोग ऐड कर देंगे तो फिर से क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 ही होना चाहिए। यस, तो यहाँ पे इसके वास्ते मैं a माइनस सी ले लिया, यस, यहाँ पे a माइनस सी यहाँ पे लिख दिया, a माइनस सी लेने के लिए क्या बोल रहा हूँ, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यहाँ पे देखो ये दोनों कट हो जाएंगे सर, अभी समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ये दोनों हो जाएंगे कट। ओके, तो ये दोनों कट होने के बाद क्या आना चाहिए अपनों को, a माइनस सी आना चाहिए। ओके, ये दोनों कट होने के बाद अपनों को रिजल्ट क्या आना चाहिए, a माइनस सी आना चाहिए सर, ये दोनों कट हो गए मान लो। ओके, समझ में आया ना सर, तो इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, क्यों बोलते हो, ए पार्ट मल्टीपल ऑफ 4 है, ए बी पार्ट मल्टीपल ऑफ 4 है, समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी वैल्यू है तो कुछ आप लोग कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, एक आप लोगों को एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी इसी के साथ ये जब मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता, मल्टीपल ऑफ 4 ही होता। ओके, जब यहाँ पे a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 था तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा ना सर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, उतना ही बनेगा, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ a माइनस सी आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। जब मॉडुलस ऑफ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 बन जाता तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कामा c। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, देखो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन रहेगा, तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा सी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन रहेगा तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रांसिटिव बन सकता है सर, कुछ इसके अंदर डाउट नहीं है, ये समझ में आ रहा ना सर। ये जो है फिर से रिलेशन बोलते बिलोंग्स टू, ये रिलेशन बन रहा है, तो इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पे ये देखो ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, रिलेशन है। ओके, तो ये ट्रांसिटिव बन सकता है, क्यों बोल रहा हूँ, ए कामा बी था, बी कामा सी था, तो डेफिनेटली ए कामा सी भी है, तो इसका मतलब क्लियरली बता देंगे कि आप ना यहाँ पे ये ट्रांसिटिव है सर। आप लोग ये आंसर को एक एग्जांपल के थ्रू भी आप लोग बता सकते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल, ऐसा कुछ वैल्यू भी लेके आप लोग बता सकते हैं, कुछ उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसिटिव है तो इसका मतलब सर, इसके पहले अपन कंप्लीट कर दिए थे ऑलरेडी, कौन सा, रिफ्लेक्सिव हुआ था, सिमेट्रिक भी हो गया था सर, यस, सिमेट्रिक भी हुआ था और ट्रांसिटिव भी बन गया, तो अभी फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सर। ओके, जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अपना आंसर अब शायद अभी भी नहीं हुआ होगा, क्यों बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर भी दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद यहाँ पे दिया है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, बोलता हूँ इसके अंदर जो भी आप लोग ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, चाहे वो 1,1, 1,2, 1,3, वो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आप लोग सेट ए के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे वो अगर 1 के साथ कनेक्टेड है ऑर्डर्ड पेयर, मान लो कि 1,5, 1,5 सर 1 के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, यस, और वो 1,5 डेफिनेटली सर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है कि नहीं, यस सर, 1,5 यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 1 ले लिया और b इज इक्वल टू मैं 5 ले लिया, तो 1,5 इसका रिजल्ट हो गया सर, ये मार लगा दो, इसका रिजल्ट तो हो गया डेफिनेटली 4, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4 बन सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर अभी एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे एक सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, यहाँ पे कंडीशन को 1,5 ऑर्डर्ड पेयर, तो ये 1,5 ऑर्डर्ड पेयर में 1 है ना सर, तो 1 जो है किसके साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ, वैसे एलिमेंट्स आप लोग एक सेट के अंदर लिखना चाहिए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1,
क्या आप लोग लिख सकते हैं? 1,5 में तो मैं तो 1 बोल दिया ना, क्या 1,1 ले सकते हैं? यस सर, 1,1 भी यहाँ पे डबलेट सेटिस्फाई करा ना, 1 - 1 जीरो होगा, जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4। यस, तो आप लोग 1,1 में 1 भी हो सकता है। तो ऐसे में कितने यहाँ पे एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैं वो उसके बारे में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ सर। ओके, यहाँ पे मैं लिख दिया, वो भी चेक कर लो एक बार। यहाँ पे देखो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ओके, 1 के साथ जो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होते हैं वो लिख रहा हूँ। 1 - 1 चेक कर लो यहाँ पे, ये जो है जीरो आ रहा इज अ मल्टीपल, तो जो भी 1 के साथ आप लोग 1,4 लेता हूँ सर बोल के बोले सोचेंगे, 1,4 सेट ए के अंदर है, लेकिन वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता ना सर। 1,4 बोलते तो मॉडुलस ऑफ 1 - 4, मॉडुलस ऑफ 1 - 4 क्या होता, मॉडुलस ऑफ 1 - 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है मालूम, यहाँ पे 3 हो जाएगा सर। 3 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, 3 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता तो आप लोग ये 4 इधर नहीं लिख सकते, ये एग्जांपल यूज नहीं कर सकते। मल्टीपल ऑफ 4 है तो जो ही एलिमेंट आप लोग लिखना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं लिया। 1 - 1 यस जीरो होता है, और 5 - 1 यस सर, 5 - 1 फिर से 4 ही होता, यस 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। और यहाँ पे देखो 9 - 1 यस सर, 9 - 1 भी हो जाएगा, यस 9 भी सेट ये के अंदर है, 1 भी है। अभी इसे ये तीनों एलिमेंट बोल तो ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ देके अभी कौन सा तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप लोग मुझे बताओ कौन सा है। आप लोग बोल रहे कि शायद कौन सा सर बोल दो 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस आप लोग 8 बोल रहे क्या, 1 - 8 तो 7 हो जाएगा, मतलब मार रहने दो, नेगेटिव रहे तो भी पॉजिटिव हो जाता। ओके, 1 - 8 यहाँ पे 7 हो जाएगा सर, 7 विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो उसलिए सर वो भी मैं नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तीनों ही सेटिस्फाई करेंगे सर। ओके, ये तीनों ही सेटिस्फाई कर देते, तो ये सेट के अंदर क्या लिखना अपन मालूम है अभी, 1, यहाँ पे देखो 1 के साथ कनेक्टेड है 1, और ये 1 के साथ और कौन कनेक्टेड है एलिमेंट 5, और ये 1 के साथ कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है 9, तो ये एलिमेंट्स को आप लोग सेट के अंदर लिख लो। एक मिनट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज कौन से 1, 5, 9, ये होगा अपना आंसर। ओके, तो आज की क्लास में अपन टोटली जो है 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ओके, दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चंस में 1 बाय 1 कंप्लीट करते जा रहा हूँ रिलेशंस में से, एक्सरसाइज 1.1 में से, तो प्लीज आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लो। यस, आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लोग अपने चैनल को लाइक करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो चाहे वो कौन सा भी फ्रेंड रहने दो, सपोज उनको भी यूज होता बोल के आप लोग फील हो रहे हैं, तो प्लीज डेफिनेटली उनको भी शेयर करो। यस, तो ये होगा सर अपना आज का क्लास, तो थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी आज की क्लास में इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में अपन और नया कॉन्सेप्ट के साथ और के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आऊंगा।